بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی، جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اب کرم دین کی بیٹیاں آہستہ آہستہ بڑی ہو چکی تھیں اور اپنے باپ کے لیے اب خود سے کھانا بنانے لگی تھی۔ جب کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیتی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہا کرتی تھی، جس کی ایک بیٹی تھی، اور اس بیوہ عورت کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ جب تینوں بیٹیاں مل کر اپنے باپ کے لیے کھانا بناتی تو وہ عورت اکثر اسی ٹائم ان کے گھر آگ مانگنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ لیکن زینب کو وہ عورت کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ جب بھی گھر آتی زینب اپنی بہنوں سے کہہ دیتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ بڑی دونوں بہنیں زینب کو سمجھاتیں، دیکھو یہ عورت ہے اور غریب ہے، اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ یہ باتیں سن کر زینب چپ ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ کہتی، دیکھ لینا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ عورت روز ان کے گھر سے آگ لینے آتی اور موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیا کرتی تھی۔ جب کرم دین نے کھانے میں کچھ خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی۔ وہ یہ سب باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن کرم دین نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، آخر میری بیٹیاں اچانک سے میرے کھانے میں کیا ملانے لگی ہیں۔ جب کھانا بنانے لگی تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول بھگو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی زینب برتن صاف کر رہی تھی جن برتنوں میں کھانا ڈالا جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ اب کرم دین پریشان تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا وہی بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے آئی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی زینب اس سے بحث کر رہی ہے۔ وہیں ہی زینب کو بڑی بیٹیاں سمجھا رہی ہیں، کوئی بات نہیں زینب، یہ بیوہ عورت ہے، آگ لینے آئی ہے، اسے آگ لینے دو۔ بڑی بہن نے کہا، لیکن اس بیوہ عورت نے آگ لینے کے بہانے نظریں بچا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرم دین کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے سے پوچھا، تم ایسا کیوں کر رہی تھی؟ تم نے میری بیٹی کا بنا ہوا کھانا خراب کیوں کیا؟ اس بیوہ عورت نے یہ جواب دیا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کتنے اچھے انسان ہو۔ تم اچھے انسان بھی ہو یا صرف دکھاوا کرتے ہو؟ تم اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو یا نہیں؟ کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں؟ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ روز وہاں سے کرم دین کے گھر سے آگ لے جایا کرتی تھی اور ان کے گھر آتی جاتی آہستہ آہستہ آنے بہانے سے باتیں کرنے لگتی۔ ایسا ہی ہوا کہ کرم دین نے اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور پھر اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب کرم دین کی چھوٹی بیٹی زینب نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ چیخنے چلانے لگی کہ پاپا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ جس عورت سے میں نفرت کرتی ہوں اس کو آپ نے میری ماں کی جگہ لا کھڑا کر دیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے تو آپ ہمیں بتاتے، ہم کسی اور سے آپ کی شادی کروا دیتے، لیکن آپ نے اسی عورت سے شادی کی ہے جس سے میں نفرت کرتی ہوں۔ کرم دین نے اپنی بیٹی زینب کو سمجھایا، بیٹا ایسا نہیں کرتے، نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، یہ بہت اچھی عورت ہے، یہ تمہیں اپنی ماں کی طرح بہت خیال اور پیار سے پیش آئے گی، تم تینوں بہنوں کا اچھے سے خیال رکھے گی۔ اب آہستہ آہستہ زینب خاموش ہو گیا، اب وہ چپ رہنے لگی تھی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیوہ عورت کرم دین کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح کرم دین کی بیٹیاں اس گھر سے دفع ہو جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ جب یہ گھر سے چلی جائیں گی تو وہ اور اس کی اپنی خود کی بیٹی آرام سے عیش کی زندگی جی سکیں گی۔ ساتھ ہی کرم دین کا دھیان پورا صرف انہی کی طرف رہے گا اور اس کی بیٹی پر رہے گا۔ وہ جانتی تھی کہ کرم دین اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں ذرا بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی بیٹی ہمیشہ قیمتی کپڑے پہن کر اس کی بیٹیاں گھر میں گھوما کرتی تھی جس سے وہ ماڈرن لگتی تھی، لیکن سوتیلی ماں نے کرم دین کی تینوں بیٹیوں کو گھر
का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वो उन्हें खाना भी वक्त पर नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी ज़रूरतें भी कम कर दी। तीनों बहनें हर वक्त दुखी और परेशान रहा करती थी। एक दिन वो रो रही थी तो उसी ज़ैनब के पास उसकी बड़ी बहन आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चलते हैं ताकि हमारा दिमाग ज़रा फ्रेश हो जाए। फिर वो तीनों बहनें चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां घने दरख्त के नीचे बैठकर वो रो रो कर अपनी माँ को याद करने में मसरूफ़ हो गई। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। वो वहीं उस दरख्त के नीचे जा बैठती और अपनी माँ को याद किया करती थी। एक दिन वो रो रही थी, उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब ज़मीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और हम बहुत दुखी हैं। हमारी माँ हम पर इतना जुल्म करती है। हम तो इतने दिनों से भूखी हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वो ज़ैनब से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस दरख्त के नीचे रोज़ाना आती हो, तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाक़या सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वो बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरी झोपड़ी है। मैं वहाँ इबादत करता हूँ और मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और इस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़ कर खा लो। ये सुनकर तीनों लड़कियाँ खुशी खुशी उस झोपड़ी के पास पहुँची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मज़े से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। उस दिन के बाद जब भी उन्हें भूख लगती तो वो उसी अनार के दरख्त के नीचे पहुंच जाया करती थी और बैठकर अनार खा लेती। अनार खाने के बाद वापस घर पहुंच आया करती थी। अब तो उन तीनों बहनों ने अपनी सौतेली माँ से खाना मांगना बिल्कुल छोड़ दिया। उनकी सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन तीनों से रोज़ इतना काम करवाती हूँ, उनको अच्छे से खाना भी नहीं देती, उन्हें जलील करती हूँ, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई भी बीमार नहीं पड़ती बल्कि उनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ, उनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वो लड़कियां जंगल की तरफ गई तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को इनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार खा रही थी तो उन्होंने अपनी पीछे उस लड़की को यानी अपनी सौतेली बहन को देखा। तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देखकर कहा कि ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। फिर ज़ैनब ने अपने हाथ में पकड़ा अनार छुपा लिया और बोली, अगर ये सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो ये हमारे लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। लेकिन ज़ैनब की दूसरी बहनें बोली, ज़ैनब अच्छी बातें क्या करो, ये बेचारी बेकसूर है। ज़ैनब की बड़ी बहनें बोली, हमारी सौतेली माँ तंग करती है, ये तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और इसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ, वो लड़कियाँ भूखी ही नहीं रहती, वो तो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़ कर खा लेती हैं। उसी दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी इबादत करते हैं जो उन्हें रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। ये सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया और सोचने लगी कि मैं इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वो गुस्से में रही। जब शाम को करमदीन घर काम से वापस आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वो बोले, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों इतनी उदास बैठी हो? वो कहने लगी, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। करमदीन ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा? वो तुरंत बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल अनार लगे। अगर तुम उस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबाल कर मेरे लिए दवा तैयार करवाओ और मेरे माथे पर वो दवा लगाओ तो मेरा सारा सर दर्द दूर हो जाएगा। करमदीन ने कहा, बस इतनी सी बात है। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, उसको जड़ों से काट कर उन जड़ों को मेरे पास ले आओ। कुछ ही घंटों में उस दरख्त को उन आदमियों ने जड़ से उखाड़ कर उसकी जड़ें करमदीन के हवाले की। करमदीन ने जल्दी से आग जलाई और इन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर लगाने लगा। थोड़ी देर में उसकी बीवी कहने लगी, मुझे आराम आ गया है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गई तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब हम क्या खाएंगी। तभी वो तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोपड़ी से बाहर आए। वो एक पल में समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वो बोले,
कि अब इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उससे भी कुछ बेहतर अता करेगा। फिर अल्लाह की तरफ कुदरत के इशारा किया और कहा कि वहाँ पर देखो। जब उन्होंने वहाँ देखा तो वाकई वहाँ पर एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने इन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा जहाँ से जितना मर्जी हो दूध पी लो। लड़कियाँ बहुत खुश हुई, मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब उनका पेट भर गया तो वो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गई। उसके बाद उनका ये रोज़ का मामूल बन गया। वो तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीती। उनकी सेहत देखकर वो सौतेली माँ हैरान थी। एक दिन उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि मैंने जंगल से अनार के दरख्त का नामो निशान मिटा दिया है, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो उन्हें पेट भर कर खाना भी नहीं देती। आखिर ये ऐसा क्यों है कि ये बगैर खाए पिए इतनी अच्छी सेहत इनकी हो रही है। तुम इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती हैं। उसी लड़की सौतेली बहन ने फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल गई। जब प्याले से वो दूध पी रही थी तो ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा और उसने बहन को चुपचाप खड़ा देखकर बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो ये घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। तब भी ज़ैनब की उन्हीं बहनों ने ज़ैनब से कहा कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, कि बेशक ये हमारी सौतेली बहन है लेकिन बेचारी है तो हमारी बहन, ये बेकसूर है। इन तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया। उन बहनों ने उस सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने काम के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो ले लो, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहाँ एक बुजुर्ग की झोपड़ी और तालाब है। तुमने झोपड़ी भी ख़त्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। वो औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो ना तो तालाब है और ना ही बुजुर्ग की झोपड़ी है। ये देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वो वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आई। उनकी सौतेली माँ ने ये सब देखा तो उसे बहुत सुकून और राहत महसूस हुई। एक दिन वो फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब करमदीन घर आया तो उसने कहने लगी, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सबसे अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। करमदीन बोला, जल्दी बताओ क्या करना है। तो उसकी बीवी बोली कि तुम ऐसा करो कि तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकाल कर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। चुपचाप वो कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में मौजूद ना थी। वो परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। ये देखकर करमदीन का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। करमदीन को समझ ना आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी उसकी और उसकी बेटियां अपनी सौतेली माँ के साथ खुश नहीं है, इसलिए उसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने उन्हें गले लगाया और कहा कि ए बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। वो उन्हें एक घने जंगल में ले गए। वहाँ उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो एक दरख्त के नीचे सो गई। करमदीन ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली माँ के जुल्म से भी बच जाएंगी। रास्ते में उसने एक हिरन और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दिया। उसकी बीवी ने वो खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया था कि करमदीन ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागी तो उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें छोड़कर जा चुका है। वो अपने बाप को पुकारने लगी। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर वो डर गई और रोने लगी। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए हुए थे। जब वो वापस लौटने लगे तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम नासिर था, कहने लगा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोगों ने किसी के रोने की आवाज़ नहीं सुनी? मुझे तो किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। फिर वो तीनों दोस्त आवाज़ की तरफ चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियाँ बैठी हुई
हुई रो रही हैं। नासिर आगे बढ़ा और उनसे पूछा, तुम यहाँ हो और इतना क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने नासिर को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया और आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें, उन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर इन तीनों लड़कियों से उन 3 लड़कों ने शादी कर ली। ज़ैनब की शादी नासिर के साथ हो गई और फिर उन तीनों दोस्तों के घर पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगी। 1 साल के बाद ज़ैनब के घर में बेटे की पैदाइश हुई। ये देखकर दोस्त और ज़ैनब की बहनें बहुत खुश हुए। अब ज़ैनब का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का मन हो रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन इसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी ज़रूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। नासिर ने ज़ैनब से इजाज़त ली और अकेले ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और नासिर घर वापस नहीं आया। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी इसके नासिर के दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम नासिर को ढूंढ कर ज़रूर वापस लाएंगे। लेकिन करनी खुदा की ये हुई कि नासिर के दोस्त भी उसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन वो भी वापस ना लौटे। अब इन तीनों बहनों पर एक बार फिर से गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन ज़ैनब अपने बेटे को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो देखती है कि एक बुजुर्ग फ़कीर जिसके हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे दरवाजे पर खड़ा है। ज़ैनब उसे देखकर बोली, बाबा मेरे शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती, जब मेरे शौहर आएगा तब आप आ जाना। इस पर फ़कीर बोला, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाना में क्या हर्ज है। ज़ैनब ने मजबूरी में उस फ़कीर को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन वही फ़कीर जादूगर बुरी नज़रों से ज़ैनब को देख रहा था। फिर उसके करीब और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। वो सामने से हट गई और बोली, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। ये सुनकर जादूगर फ़कीर को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से ज़ैनब को कुतिया बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। दूसरी तरफ ज़ैनब का बेटा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ज़ैनब की बहनों ने जब उसके बेटे की आवाज़ सुनी तो वो भागती हुई उसके घर आई। उन्होंने जल्दी से ज़ैनब के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें ज़ैनब कहीं नज़र नहीं आई। इधर एक तरफ तो ज़ैनब भी गायब हो चुकी थी। वक्त उसी तरह गुजरता रहा। अब ज़ैनब को गुम हुए भी 14 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था। इस दौरान ज़ैनब का बेटा जवान हो चुका था। उसे उसकी दोनों खालाओं ने मिलकर पाला था। एक दिन ज़ैनब की खालाओं ने उसे उसकी माँ के बारे में सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गया और बोला, खाला आज मैं अपने माँ बाप को ज़रूर ढूंढने जाऊँगा। उसकी खाला ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा जो होना था वो हो चुका। तो वो कहने लगे, खाला आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बाप और बाकी सबको ढूंढ कर ज़रूर वापस लाऊंगा। फिर वो लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो अपने माँ बाप को कहाँ से ढूंढे। इसी तरह वो उन्हें तलाश करते करते एक ऐसे इलाके में जा पहुंचा जो पूरी तरह पत्थरों का इलाका था। वहां इसने कुछ पत्थर देखे थे और पहले यहाँ एक नौजवान आया था। उसने पूछा, इसके बाद उसके पीछे 2 और नौजवान आए। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर में बदल दिया और इसने एक नेक पाकीज़ा लड़की को भी 12 साल से कैद कर रखा है। वो जादूगर उसी लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वो लड़की किसी भी तरह मान नहीं रही। बुजुर्ग की तमाम बातें सुनकर लड़का सोचने लगा, यकीनन अल्लाह वाले बुजुर्ग मजबूरन उसी खतरनाक इलाके में आकर रहने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। बुजुर्ग सोचने लगे, क्या पता इस लड़के की मां को छुड़वाने से बाकी कैदियों को भी जादूगर की कैद से आज़ादी मिल जाए। बुजुर्ग ने बाकी काम वालों को बताया, ये मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को शक हुआ कि गाँव में कोई नया लड़का आया है तो वो तुरंत अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुँचे और पूछने लगा, ये कौन है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये मेरा पोता है। और इसी तरह जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई। लड़के जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने लड़के को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे, मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहाँ एक लड़की को मेरा पैगाम देना है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लड़का समझ गया कि वो अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वो अपनी माँ के लिए फूल लेकर जाएगा। इसने एक तरकीब बनाई कि वक्त आने पर वो अपनी माँ यानी ज़ैनब की शादी के वक्त नासिर ने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। बाद में ज़ैनब ने वो अंगूठी अपने बेटे को पहना दी। सालों बाद अंगूठी बढ़ाकर दोबारा बनाई गई और लड़के ने अब भी वही अंगूठी पहनी हुई थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने लड़के से कहा, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो, जब तुम्हारी माँ उसे देखेगी तो तुम्हें फ़ौरन पहचान लेगी, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। उस जादूगर ने ज़ैनब की
रखवाली के लिए, एक निगरानी के लिए एक चौकीदार तैनात कर रखा था, जो जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता था और उसके पोते को नेक समझता था। उसने लड़के को गुलदस्ता देकर रवाना किया, ज़ैनब के पास भेजना शुरू कर दिया। लड़के की उम्र महज 14 साल थी, इसी वजह से जादूगर को उस पर कोई शक नहीं हुआ। ज़ैनब को एक कमरे में कैद करके रखा गया था, जहाँ किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं थी। वो लड़का रोज़ाना गुलदस्ता लेकर ज़ैनब के पास जाता और फिर वो जादूगर की एक तासीर हमेशा ज़ैनब के साथ रहती। एक दिन किस्मत का ऐसा हुआ कि जब कमरे में ज़ैनब के सिवा कोई ना था, लड़के ने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर ज़ैनब के कदमों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता ज़मीन पर रखा, अंगूठी की आवाज़ आई। ज़ैनब ने हैरानगी से गुलदस्ता उठाया और फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया। ये वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। ज़ैनब की और उसकी, यानी कि उसके बेटे की, दोनों की नज़रें मिलते ही हकीकत साफ हो गई। जादूगर ने जो किया था वो उसे बता दिया, लेकिन उसका बेटा अपनी मां को आज़ाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। ज़ैनब ने जादूगर से शादी की रजामंदी बताई और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है, जो कि एक दरख्त के नीचे इस सख्त पहरे में रखा गया है। ज़ैनब ने ये राज अपने बेटे को बताया और सख्ती से मना किया कि तुम जंगल नहीं जाओगे, क्योंकि ये जादूगर बहुत ही खतरनाक जादूगर है और उसने अपने उस तोते पर बहुत से पहरेदार रखे हुए हैं जो उस तोते की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन वो कहने लगा, नहीं माँ, मैं आपको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर उसने कई दिनों की मेहनत के बाद बहुत मुश्किल से उस दरख्त को ढूंढ लिया जिस पर उस तोते को रखा गया था और जादूगर की इमारत तक वापस ले आया। जादूगर उसे देखकर तोते की वापसी की भीख मांगने लगा, लेकिन लड़के ने चालाकी से जादूगर से सभी कैदियों को आज़ाद करवाया। इसके बाद इसने तोते के पंख खींचे, जिससे जादूगर की ताकत ख़त्म हो गई और आखिर में तोते ने उस नौजवान लड़के ने उस तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर मर गया। लड़के ने अपनी माँ ज़ैनब और अपने अबू नासिर और बाकी सभी कैदियों को आज़ाद करवाया और फिर सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुँचे। सब ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। ज़ैनब अपने शौहर से मिलकर बहुत खुश हुई, जो जादूगर की कैद में सालों तक रहा था। इनका खुद का बाप, जो अपनी बेटियों को खोने के गम में डूबा हुआ था, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगा। उन्होंने बेटियों से माफ़ी मांगी और बताया कि उनकी बीवी की साजिशों की वजह से ये सब कुछ हुआ था। तीनों बेटियों ने अपने बाप को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। उनके बाप ने बताया कि उनकी सौतेली माँ, जो उन पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी यानी कि कैंसर का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। उस बाप ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ना हो सकी। आखिरकार वो मौत की आगोश में चली गई। इसके बाद सब ने खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जब हम किसी दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और अगर किसी के लिए बुरा चाहेंगे तो हमारे साथ भी यकीनन बुरा होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।